Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to start a new chapter of science, which is tissues. Before starting the tissues, I would like to recall that all the living organisms are made up of cells, and on the basis of cells they are divided into few different parts, which are two different types, which is unicellular and multicellular. Unicellular may like amoeba, which carries only a single cell, which have only single cell, and on the other hand there are multicellular organisms, for example us, birds, humans, animals, who consist of a group of cells. And in human beings muscle cells, for example, in human beings muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood follow the transport oxygen, food, hormones, and the waste material, and so on. In plants, vascular, we all know that xylem and phloem are there. And one term we can use in for multicellular organisms, that there is a division of labor among them, as the work of the heart is to pump the blood, but the nose wouldn't pump the blood, only the heart would pump the blood. That is why there is a division of the labor, the division of the function among different cells, and the group of cells is known as a tissue. But in amoeba or in any other unicellular organism, the cell membrane is used to eat food, engulf food, then like used to spit food, whatever is a waste food, he used to throw it away. From that itself, the exchange of gases is also from the cell membrane. So everything is doing only one thing. There is only nucleus in that, and cytoplasm, protoplasm, nucleoplasm, that are also there. But the main, like in tissue, in the multicellular we all know, and when we will do the cell chapter you will be learning more in detail of that. Then here one question also arises, that we are talking about cells, the group of cells is a tissue, but what is a tissue? Tissue is a group of cells that are similar in a structure or work together to achieve a particular function, that forms a tissue. नाउ टिश्यू, अब सेल में हमने ये पढ़ा था कि सेल में प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था अमीबा एंड ह्यूमन का, तो ऐसे तो टिश्यूज़ में भी होगा. यस, तो टिश्यूज़ में प्लांट एंड एनिमल सेल्स होते हैं. और ये सेम, अब ये 6.1 में अब ये पूछा है कि आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? नो, there are different tissues in them. Their function is very different. Everything is different. There is so much, there's so many differences. Their locomotion, their growth, their eating style, their living style, everything is different. So now move on to the next topic, which is plant tissues. Plant tissues are having two parts, which is meristematic tissue and permanent tissue, which you can see on my screen. And permanent tissue is also divided into two parts, which is simple permanent tissue and the complex permanent tissue. So first of all, we will be going to start the meristematic tissues, and the meristematic tissues are the dividing tissues of the plant. In this figure you can see there are three types of meristematic tissues: apical, intercalary, and the lateral. What is the function of these? First of all, meristematic tissues, we all know that they are the dividing tissues, and they depend upon the region where they are present. The meristematic tissues are classified as just we discussed. They are apical, lateral, intercalary. New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue. Now, what is the function of the apical? Apical, which is, you can see on the tip of the plant, the roots, in the roots there is also an apical, but roots are not drawn over here. You can see the tip. At the tip you can see it's apical, and so here you can see the tip
अब टिप तो बार बार हर एक पॉइंट से बढ़ती रहेगी, इट वुड बी इंक्रीजिंग, सो वो काम एपिकल का होता है। देन यू विल बी थिंकिंग दैट लेटरल का भी तो यही होता है। नो, लेटरल का एक्चुअली एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल का सबका ग्रोथ करना ही होता है, डिवाइड करना ही होता है। लेकिन एपिकल जो है वो स्टेम, वो यूजुअली टिप को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी प्लांट की टिप को नहीं काटना चाहिए, वरना पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा, मतलब प्लांट ग्रो ही नहीं होता ऊपर से। फिर अब इंटरकैलरी भी हम पता है, हमने देखा है कि पहले हम सीड ग्रो करते हैं, सीड से एक स्टेम आती है, स्टेम से ब्रांच निकलती है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकलती है, दूसरी ब्रांच से लीफ निकलती है, लीफ की उस नोड से दूसरी नोड निकलती है। तो ये जो टर्म अभी आया नोड से रिलेटेड ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये नोड्स के आसपास होता है, एंड दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज ऑन लीव्स फ्रॉम द स्टेम. Lateral, if we talk about the lateral meristem is used for the it increases the girth of the stem. Here it is written that the girth of the stem or the root increases due to the lateral meristem, or we can say the cambium. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, अब ये तो है नहीं कि अब वो एक बार ग्रो हो गए। एज वी जस्ट डिस्कस दैट ग्रोथ में हमें भी पता है कि प्लांट टिश्यू कहीं ना कहीं आके तो रुक ही जाता है, वो परमानेंट बन जाता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए तो परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दो अलग अलग आए हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ में कुछ डिफरेंस है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बहुत एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोस वॉल्स होती हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, और वो वैक्यूल्स भी लैक करते हैं। लेकिन जब वो जैसे जैसे परमानेंट हो जाते हैं तो उनके पास भी वैक्यूल, उनका काम करने में उसका भी हाथ आगे आना ही होता है स्टोरेज वगैरह के लिए। अब एज अ रिजल्ट देन दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब ये जो प्रोसेस है परमानेंट शेप का, साइज़ का, जो आगे जाके प्लांट में परमानेंट हो जाते हैं, वो होता है डिफ्रेंशिएशन leads to the development of various types of permanent tissue. Now I've just discussed that there are two types of permanent tissues. There's a simple permanent tissue and the complex permanent tissue. Few layers of the cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissues, and the simple permanent tissues जो है ये 3 types के होते हैं: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Here you can see the diagrams also: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Now what is the use for that? अब ये तो हमें पता ही है कि ये जो प्लांट सेल होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, इसमें कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो फूड को भी स्टोर करते हैं। वो चलो वो छोड़ो। इन सम सिचुएशंस अब हम पैरेन्काइमा पे आते हैं। पैरेन्काइमा भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक वो डिवाइडेड होता है क्लोरेन्काइमा में। एक तो हमने पढ़ा था, देखो, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और अंडर पैरेन्काइमा 2 पार्ट्स और आते हैं, क्लोरेन्काइमा, और एक एरेन्काइमा। तो जो क्लोरेन्काइमा है वो इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, और एरेन्काइमा नाम से कुछ एयर से रिलेटेड है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि जो फ्लोट करते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ, ये जो है इसके अंदर एरेन्काइमिक टिश्यूज़ थोड़े अच्छे ज़्यादा होते हैं। अब हमने ये भी देखा कि जो स्टेम होती है वो हम छोटे, जो नॉर्मल एक प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, उसको हम थोड़ा सा, जब वो हम उसको काटने लगते हैं कैंची से, तो कैंची से तो हाँ कट जाता है, लेकिन अगर हम अपने हाथ से काटते हैं तो वो बीच में एक पॉइंट पे आके वो बेंड करता है। कोई भी चीज़ जब प्लांट की कोई भी चीज़ जब बेंड करती है वो कॉलेन्काइमा की वजह से करती है। और बेंड से हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टेंड्रिल्स, जो क्लाइंबर्स में होती है। और इन क्लाइंबर्स की वजह से ये जो क्लाइंबर्स में अच्छा होता है कॉलेन्काइमा, जो इतना उनको बेंड कर देता है, इतना बेंड हो जाता है कि वो ब्रेक ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके तो ब्रेक होना ही होता है। ये इसीलिए ये बाकी प्लांट्स को, नॉर्मल प्लांट्स और क्लाइंबर्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। जो कॉलेन्काइमा है ये लिविंग होते हैं,
और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बहुत कम होती है। अब हम स्क्लेरेनकाइमा पे आते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, जैसे कि आपने कोकोनट देखा होगा, हम सब ने देखा है, तो बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट स्टेज जो होती है कोकोनट के, उसमें बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक सीलिया, बट वो सीलिया नहीं होते हैं, वो हम उसे बोलते हैं हस्क ऑफ द कोकोनट, जो बहुत हार्ड होता है और स्टिफ होता है। ये स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू से बना होता है। ये इट्स आउट ऑफ सिलेबस, बट या ये आ भी सकता है। सेल्स ऑफ, अब ये जो सेल्स होते हैं ये कोई लिविंग नहीं होते हैं। जैसे सीलिया जो होता है वो लिविंग होता है, लेकिन ये जो हस्क ऑफ कोकोनट है ये डेड होता है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वेल एज वॉल्स आर थिकन ड्यू टू द लिगेन ना एक और टर्म आई है। अभी आप इधर देखो, ये पहला है पैरेन्काइमिक सेल, ये पैरेन्काइमा है। इधर बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। बट अगर हम जैसे जैसे कॉलेनकाइमा पे आए तो इसमें बीच, ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ इसमें थिकनिंग आ गई है। ये थिकनिंग जो वर्ड है ये लेजिन को सिग्निफाई करता है। अब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही, यहाँ पे तो पूरा ही थिकन हो गया, तो वही थिक लिग्निफाइड वॉल्स जो है यही हम इसे लेगन बोलते हैं। अब दो टिश्यूज़ जो हैं, दिस टिश्यू, ये जो स्क्लेरेनकाइमिक टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ जो होते हैं ये स्टेम में मिलते हैं आपको, या तो फिर वस्कुलर बंडल्स, लीव्स में, सीड्स की हार्ड कवरिंग, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। अब हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो स्किन है, एपिथेलियल टिश्यूज़ उसके अंदर फाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्लांट की स्किन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ एपिडर्मिस. Epidermis usually made of one single layer cells. In some plants living in dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss of critical. The entire surface of the plant has an outer covering, which is epidermis. It protects all the plants of all the parts of the plant. एपिडर्मल सेल्स अब ये अलग अलग होते हैं। अब लाइक इनका प्रोटेक्शन का काम होता है, प्रोटेक्टिव रोल। अब जो बहुत प्रोटेक्टिव रोल आता है, ये आउटर कवरिंग होती है। और इनमें यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स भी होते हैं, जो हमने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि स्टोमेटा जो होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, वही स्टोमेटा का काम होता है। एपिडर्मिस, अब ये एपिडर्मिस के ऊपर एक लाइक अ स्मॉल नोट है। अब एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो, इनका जो फंक्शन है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, और इनका बहुत बड़े बड़े हेयर्स, ये इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बहुत होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया अच्छे से बढ़ा देते हैं। अब वही अगर डेजर्ट की बात आए, तो डेजर्ट में हमने पता है कि इनको पानी की ज़रूरत होती है, और डेजर्ट में वैसे ही पानी इतना कम होता है, और वैसे भी जो ट्रांसपिरेशन होती है वो तो ट्रांसपिरेशन तो होता रहता है, पानी का लॉस होता रहता है। लेकिन अगर डेजर्ट प्लांट्स में ही पानी का लॉस हो जाएगा तो उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाता है। इनके पास तो एक्सेस क्या, इनके पास तो जो क्वांटिटी चाहिए वो भी नहीं आती है डेजर्ट प्लांट्स में। इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स की जो एपिडर्मिस होती है ये बहुत थिक वैक्सी कोटिंग लगी हुई होती है इसमें क्यूटिन की। अब क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये वाटरप्रूफ क्वालिटी का होता है। ये जो डेजर्ट प्लांट्स के आउटर सरफेस पे लगा होता है, आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ द ट्री। कभी हमने देखी है आपने, जब वो एक यंग होती है फिर वो जब ओल्ड हो जाती है, अब भी उसके ऊपर कॉक के बारे में है। जब सेल्स का टर्म जब आया था, तो जब एक साइंटिस्ट ने जब बताया था, तो उन्होंने कॉक को ही यूज़ किया था सेल का, रॉबर्ट हुक। As the plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. The strip of the secondary meristem located in the cortex forms layer of cell which constitute the cork. Now this is about the cork. Then complex permanent tissue. It consists of two parts, which is xylem and phloem. Complex permanent tissues are what? They are made up of more than one type of cell. ये हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं इनको। ये कंडक्टिंग, वैस्कुलर दोनों होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा, तो इनके अंडर भी तो कुछ आता होगा।
तो इनके अंडर, जाइलम के अंदर 4 पार्ट्स आते हैं और 5 फ्लोएम के अंदर 5 पार्ट्स। जाइलम जो है इसके अंदर ट्रैकियाज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स होते हैं। ये यूजुअली जो होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं। और जो फ्लोएम होता है ये 5 टाइप्स का होता है, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन इसमें जो फ्लोएम फाइबर्स होता है ये नॉन लिविंग होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। फ्लोएम जो होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, और यहीं पे हमारा half of the chapter got complete. So we will meet you with the animal tissues in our next video.